Hello everyone. Now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic characteristics of Sarv Shiksha Abhiyan along with major objective of Sarv Shiksha Abhiyan and especially what is the implementation facts about Sarv Shiksha Abhiyan with reference to inclusive education in 2002. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं, साथ ही सर्व शिक्षा अभियान की क्या मुख्य उद्देश्य हैं और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कैसे सर्व शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा को प्रमोट करने में, लागू करने में और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को कैसे मजबूती प्रदान करती है उसके बारे में। सर्व शिक्षा अभियान अर्थात एक ऐसा आधार जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की भागीदारी है। सर्व शिक्षा अभियान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा आधार या विशेषताएं कह सकते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी प्राथमिक स्तर पर सभी को शिक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, यानी किसी को भी अस्वीकृत यानी नहीं करना, जिसमें कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो, किसी भी परिस्थिति में शिक्षा से उसे बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ एक ऐसा आधार, एक ऐसी संरचना जिसमें कि शिक्षा का सबसे उत्तम परम स्थान है और शिक्षा को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना, ये सर्व शिक्षा अभियान का सबसे बड़ा आधार है। मैं अब आपको और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 4 paper 12 creating an inclusive school. Number 1, characteristics of SSA Sarv Shiksha Abhiyan. Number 1, first point, it is a program with a clear time frame for universal elementary education. Second point, it is a response to the demand for quality basic education all over the country. Third point, it is an expression of political will for universal elementary education across the country. It was a partnership. Next point, it was a partnership between central, state and local government. Next point, it was an opportunity for states to develop their vision for elementary education. Next point, it was a result oriented approach with accountability towards performance and output at all levels. Last point, it was an approach that focuses on the need for educationally backward areas. And the also last point, it also looks into the needs of disadvantaged social groups including children with special needs. Now next, objectives of Sarv Shiksha Abhiyan. First point, all children in school education guarantee center, alternate school or back to school camp by 2003. Next objective, all children complete 5 years of primary education by 2007. Next point, all children complete 8 years of elementary education by 2010. Next point, focus on elementary education of satisfactory quality with emphasis on education for life. Next point, bridge all gender and social category gaps at primary stage by 2007 and at elementary education level by 2010. Universal retention by 2010 also. Now, Sarv Shiksha Abhiyan 2002 with reference to inclusive education. As you know that Sarv Shiksha Abhiyan is a significant effort by Government of India to popularize universalization of elementary education. Second point, it aims to bring every child, irrespective of difference in gender, physical,
intellectual, and social cultural conditions. Next point, inclusive education means full inclusion of children with diverse abilities in all aspects of schooling, which other children are able to assess and enjoy. Next point, it involves regular schools and classrooms genuinely adopting and changing to meet needs of all children as well as celebrating and valuing differences. Main features of SSA Sarv Shiksha Abhiyan 2002 with reference to inclusive education. Number 1, zero rejection policy. Number 2, identification of children with special needs. Number 3, assessment of children with special needs. Number 4, provision of appropriate assistive devices. Number 5, establishment of resource rooms. Number 6, teacher training. Number 7, individualized education plan. Number 8, financial provision. Number 9, orientation training for parents. Number 10, promotion of NGOs and social organization. Number 11, research. Now one by one. First, zero rejection policy. It means no child should be deprived of education. SSA emphasizes that children with special needs should be brought to common school. Second point, identification of children with special needs. Identification of children with the help of primary health center and Anganwadi should be done. Third, assessment of children with special needs. Assessment of children with special needs by special teams at block level should be done. Number 4, provision of appropriate assistive devices. Provision of appropriate assistive devices should be done to children with special needs by government. Number 5, establishment of resource room to provide at district level for providing special equipments, learning materials and special teaching techniques. Number 6, teacher training should be organized at block level to meet needs of children with diverse abilities. Number 7, individualized education plan should be prepared for children with special needs to made by schools with consultation of experts on the basis of disability. Number 8, financial provisions should be compulsory to the children with special needs. Orientation training for parents should be organized to make them aware of their role and help in study. Promotion of NGO and social organization to provide help in educating of children with special needs. And last one is research should be conducted in field of special education and needs of children with disability. On the basis of features, it indicates that SSA has adopted an expensive and broad program to bring all children in mainstream of education, keeping in mind the concept of inclusion. अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट करूं। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, यह सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा वाला कार्यक्रम है। नंबर 1, फर्स्ट, यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, यह देश भर में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट, यह केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच की एक साझेदारी थी। नेक्स्ट, यह राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी दृष्टि विकसित करने का अवसर था। नेक्स्ट, यह सभी स्तरों पर प्रदर्शन के प्रति जवाबदेही के साथ एक परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण था। यह एक दृष्टिकोण था जो कि शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकता पर केंद्रित है। यह विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों सहित वंचित सामाजिक समूहों की ज़रूरतों को भी देखता है। अब मैं सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य के बारे में थोड़ा बात करूं। फर्स्ट, 2003 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी केंद्र या वैकल्पिक स्कूल या विद्यालय कैंप में वापस आ गए। नंबर 2, सभी बच्चे 2007 तक 5 साल तक का प्रारंभिक विद्यालय
पूरा कर लेते हैं। सभी बच्चे 2010 तक 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा भी पूरा कर लेते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट, जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देने के साथ संतोषजनक गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सभी लिंग और सामाजिक श्रेणी अंतरालों को अधिकार दें और उसी अंतराल में शिक्षा को पूरा करें। दूसरा, 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण, यानी 2010 तक सभी को जो है वह एक समान शिक्षा प्रदान। वह वर्तमान में 2020 की ये प्रक्रिया चल रही है। इस योजना का, इसके उद्देश्य को आगे भी बढ़ा दिया गया। अब मैं बात करूँ समावेशी विद्यालय के संदर्भ में, यानी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान 2002 क्या कहता है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास था। इसका उद्देश्य हर बच्चे को लिंग, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों में अंतर के बावजूद साथ में लाना था। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय शिक्षा के सभी पहलुओं में विविध क्षमताओं वाले बच्चों का पूर्ण समावेश जो अन्य बच्चों तक पहुंच और आनंद लेने में सक्षम हो। नेक्स्ट, इसमें नियमित रूप से विद्यालयों और कक्षाओं को शामिल करना और सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ और मतभेदों को पूरा करना, यानी जो मतभेद हैं उनकी समस्याओं को समाधान करना भी शामिल है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान 2002 की मुख्य, यानी जो फैक्ट्स हैं या मुख्य विशेषताएं हैं वो किस प्रकार है, कौन कौन सी हैं जिनको कि पूरी तरह से लागू किया गया। नंबर 1, शून्य अस्वीकृति नीति। नंबर 2, विशेष आवश्यकता वालों बच्चों की पहचान। सर्वप्रथम एक एक करके मैं बता दूं। इसका अर्थ है शून्य अस्वीकृति नीति। इसका अर्थ है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान ने जोर दिया कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को आम स्कूल में लाया जाना चाहिए। नंबर 2, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ियों की मदद से उन्हें विद्यालय में पहुंचाया जाए या विद्यालय तक उन्हें वापस लाया जाए। नंबर 3, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर विशेष टीम द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नंबर 4, उपयुक्त सहायक उपकरणों का प्रावधान हो। सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपयुक्त सहायक उपकरणों का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे कि वो उनके शिक्षा में कोई व्यवधान न पड़े। नंबर 5, संसाधन कमरों की स्थापना। विशेष उपकरण, शिक्षण सामग्री और विशेष शिक्षण तकनीक प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध कराना, ताकि जो भी व्यवस्थाएं कक्षा कक्ष की हों उन कक्षा कक्ष को संसाधन से परिपूर्ण किया जाए। नंबर 6, शिक्षक प्रशिक्षण। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जाना चाहिए, जिससे कि उस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने में जो शिक्षक हो वो पूरी तरह से ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो और उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को शामिल कर सकें। नंबर 7, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी विकलांगता के आधार पर विशेषज्ञों के परामर्श के द्वारा विद्यालय द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी इसी प्रकार से तैयार की जानी चाहिए। नंबर 8, वित्तीय प्रावधान। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वित्तीय प्रावधान अनिवार्य होना चाहिए। माता पिता के लिए एक अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। माता पिता के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी भूमिका से अवगत हो सके और अध्ययन केंद्र में अध्ययन यानी विद्यालय के जो स्थान है यानी विद्यालय में बच्चों को पहुंचाने में मदद करें और बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में भी उन्हें जागरूक करें। नंबर 10, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों को बढ़ावा देना।
ऐसे कार्यक्रम के लिए गैर सरकारी संगठनों और सार्वजनिक संगठनों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने में सहायता प्रदान कर सके। नेक्स्ट, अनुसंधान। विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा और ज़रूरतों के क्षेत्र में भी अनुसंधान किया जाना चाहिए। अतः सुविधाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान ने समावेश के अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए व्यापक और एक संपूर्ण कार्यक्रम को अपनाया है, जिससे कि शिक्षा को मूल उसकी भावना को सामाजिक स्तर तक पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में था, ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में आपकी और भी जो समस्याएं होंगी प्रश्न उत्तर से संबंधित, उसका समाधान किया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।